میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کو گمراہی کا امکان اصحاب کے اندر ہے، اہل بیت کے اندر گمراہی کا امکان نہیں۔ اور اہل بیت کا تعارف کرایا، چادر کے نیچے کرایا، ام المومنین عائشہ کے گھر میں تعارف کرایا، ام سلمہ کے گھر میں تعارف کرایا، جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تعارف کرایا، موبائل میں تعارف کرایا۔ اللہم ہاؤلاء اہلی، پروردگارہ یہ میرے اہل ہیں، اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رسول اکرم کے دیگر فرمودات کی روشنی میں، آیات قرآنی کی روشنی میں یہ ترجمہ کرنا اور حضور کی طرف منسوب کرنا نہیں ہے، اس کے اندر ابہام ہے، فرقے کا نام بتائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بندے فرقوں کی ابتدا حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت سے شروع ہوئی۔ اول سلمت فی الاسلام مخالفت علی، حضرت علی کی مخالفت کی وجہ سے تفریق ہوئی ہے۔ پہلا رخنا جو اسلام میں پڑا ہے وہ حضرت علی کی مخالفت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا مخالف اگر صحاب بھی ہے تو غلطی پر ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہوتا رہے صحابی، ہم اس صحابی کو مانیں گے جو حضرت علی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا ہے، یہ میرے پاس اس وقت مستدرک حاکم تیسری جلد ہے۔ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے علی، میری امت تجھ سے غداری کرے گی، ان الامت ستغدر بک من بعدی، میری امت تجھ سے غداری کرے گی۔ یہ میرے سامنے مستدرک حاکم کی تیسری جلد کئی دفعہ آپ کو دکھا چکا ہوں، اور اس کتاب کے اندر حضور کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان الامت ستغدر بک بعدی وانت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، اے علی میری امت تجھ سے غداری کرے گی اور تو میری ملت پر زندگی گزارے گا اور میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا۔ من احبا کا احبانی ومن ابغضا کا ابغضانی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تجھے ناراض کیا اس نے تجھ سے بغض کیا، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور حقیقت یہ ہے وَإِنَّ هَذَا سَتَخْذِبُ مِنْ هَذَا، آپ کی داڑھی کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کر کے کہا یقیناً یہ تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ انت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا۔ تو حضور یہ اب ایمان سے بتانا غداری حضرت علی سے کس نے کی ہے؟ کون غدار ہیں؟ کنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا اور کنہوں نے غداری کی حضرت علی علیہ السلام سے؟ اور پھر حضور نے فرمایا سَتُقَاتِلُكَ فِئَةٌ الْبَاغِيَةٌ، اے علی ایک باغی گروہ تجھ سے جنگ کرے گا، باغی گروہ تجھ سے جنگ کرے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ حضرت علی علیہ السلام سے بغاوت کرنے والے کون ہیں؟ یہ میں آپ کی خدمت میں اور کتاب پیش کرنے والا ہوں۔ یہ آپ کی بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، یہ 11ویں جلد ہے کنز العمال کی، یہ کنز العمال کی 11ویں جلد۔ حضور کے فیصلے ہیں میں جو سنا رہا ہوں آپ کو، حضور نے فیصلہ کیا ہے ان الامت ستغدر بک من بعد وانت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی وان ھذا سیغضب من ھذا۔ پھر وہی اشارہ آپ نے کیا اے علی تو حق پر ہے،
उम्मत तुझसे गद्दारी करेगी, तू मेरी मिल्लत पर जिंदगी बसर करेगा, मेरी सुन्नत पर तुझे कत्ल किया जाएगा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसे मुझसे मोहब्बत की, जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इन्ना हाजा, यानी दाढ़ी की तरफ इशारा किया, ये दाढ़ी आपकी, सयख्ज़िबु मिन हाजा, सर के खून से आपकी दाढ़ी रंगीन होगी, आपको कत्ल किया जाएगा। ये जनाब रिसालत मआब का इरशाद गिरामी है और हजूर का ये इरशाद हमारे लिए हुज्जत है। हजूर ये फैसला कर रहे हैं और आपने फरमाया, ए अली अंत अलल हक, अंत अलल हक, अल हक को मअलियन व अली मअल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, मैंने आपकी खिदमत में इमामत के उन्वान से चंद अहादीस पढ़ के बताई कि रसूल अकरम के बाद ये तफासीर तो तीसरी सदी से शुरू हुई हैं लिखी, और अलूम शरइया जो लिखे गए हैं, अलूम शरइया, उनकी तदवीन बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में शुरू हुई। लेकिन इससे पहले मिल्लत फिरकों में बट चुकी थी। 3 फिरके वजूद में सामने आ गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानने वाले शियाने अली, और मुआविया बिन अबू सुफियान को अपना पेशवा मानने वाले शियाने मुआविया, और तीसरे नंबर पर खारिज, तो इन दोनों से मुखालिफ। तो ये याद रखिएगा, अभी कोई तफसीर वजूद में नहीं आई, हदीस की किताब मुदव्वन नहीं हुई, फिरके पहले बन चुके हैं, और किताबों के अंदर जिन लोगों ने हुकूमत पे कब्जा किया, बनु उमैया हुकूमत के ऊपर काबिज हुए, और उनके जमाने में तदवीन हदीस शुरू होती है। तो याद रखिए, मिंबरों के ऊपर अमीरुल मोमिनीन को सबको शत्म किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, उधर उलूम की तदवीन हो रही है, अहादीस जमा हो रही हैं। तो दयानतदारी से आप बताएं कि आले रसूल की कदर व मंजिलत, वो जो लायके दरूद व सलाम हैं, उनके साथ शाहाने बनी उमैया ने क्या सलूक किया, ये गौर तलब बात है। उम्मत यानी मजमूई हैसियत से उम्मत का रवैया क्या है, ये याद रखना। उम्मत का रवैया यहां पता चलेगा। ये मेरे पास मशहूर किताब आपकी सही बुखारी, और इस सही बुखारी के अंदर हजूर ने कहा है साफ लफ्जों में, हालात को देख लिया था, जब हजूर ये कह सकते हैं कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 गलत होंगे, एक सही होगा, तो आपने उसका तर्जमा कर लिया कि सही वो है मा अना अलैहि व सहाबी। मैं कहता हूं ये नहीं है। जब अली अलैहिस्सलाम और मुआविया हैं, खारजी हैं, 3 फिरके तो हो गए, अब इन 3 फिरकों में फैसला करे। जनाब रिसालत मआब का इरशाद गिरामी है, या अली अंता वशियतु का फिल जन्ना, या अली अंता वशियतु का हुमुल फाइजून यौमल क़यामा। ए अली, तू और तेरे शिया कामयाब और बामुराद हैं, तू और तेरे शिया जन्नत में जाएंगे। ए अली, तू और तेरे शिया कामरान हैं। हजरत रसूल अकरम का ये इरशाद गिरामी आप पढ़ें, और आपकी किताबों में दिया हुआ है। तफसीर दुर्र मंसूर में जलालुद्दीन सुयूती ने कुरान मजीद की आयत सूरह बय्यना की, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया की झैल में लिखा है 4 रावी हैं, 4 रावी हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद रावी हैं, इब्ने अब्बास रावी है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी है, और सईद रावी है। 4 रावियों ने इस रिवायत किया है इस हदीस को कि ए अली, तू और तेरे शिया कामयाब हैं, कयामत के दिन तू और तेरे शिया जन्नत में जाएंगे। तो जनाब रिसालत मआब ने अपने बाद पैदा होने वाले फिरकों का फैसला कर दिया है।
अब देखिए ये रसूलुल्लाह की हदीस है, मैं फिरके तारीख के आईने में, तफसीर के आईने में, हदीस के आईने में पेश कर रहा हूं। ये तीन गुरोह हजरत अली के जमाने में वजूद में आए और यहां पर नूरुल अब्सार में अल्लामा शबलंजी लिख रहे हैं, इन तमाम रिवायात को दे के अपनी किताब नूरुल अब्सार में देते हैं, या अली अंत वशियतु का फिल जन्ना। वहां पर लिखते हैं कि हकीकत में वो शिया जो जन्नत में जाने वाले हैं वो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हकीकत में जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो हजरत अली को मानने वाले हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह आप हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद की इमामत का जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि अब वही शिया होगा जो अली को इमाम मानेगा, अली की औलाद को इमाम मानेगा। इमाम माने वो किसी और को और कहे कि हम अली के शिया हैं। अली अलैहिस्सलाम का शिया वो है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ होकर उनके मुखालिफिन से जंग की, जैसे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तोहफा असना अशरिया के अंदर साफ लिखा है कि जब ये जंग सफीन हुई है 37 हिजरी में, तो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत के पेशवा सब अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबल में आ रहा था उनका कोई ताल्लुक नहीं है अहले सुन्नत बिरादरान से, वो कोई और तबका है। अहले सुन्नत तो सब हजरत अली के साथ हैं, उनके पेशवा हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ हैं। और उसके बाद जब जंग होती है तो इसके इंशाअल्लाह तफसीलात में आइंदा बयान करूंगा। आज मैंने सिर्फ अपना मौक़िफ़ बताना था कि अभी ये तकरीर जारी रहेगी, ये सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। इस वक्त में अभी वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो मैंने तर्जमे कुरान मजीद के और कुरान मजीद की तफासीर से अपने मौक़िफ़ को साबित किया कि हमारा अकीदा इस आयत के बारे में ये है कि रेस्पेक्टिव इमाम के साथ हर फिरका हर ग्रोह बुलाया जाएगा जिसकी उसने इस दुनिया में पैरवी की है। ये आपकी किताबों से शिया मसलक की और शिया अकीदे की मैंने तायीद साबित कर दी है। इंशाअल्लाह अजीज आइंदा तकरीर के अंदर यहीं से आगे चलेगा कि शिया किन को इमाम मानते हैं, क्या वो इमाम हैं या नहीं, कुरान से इमामत का मायार क्या है, हदीस में इमामत उम्मत का मायार क्या है। उस मायार को डिटरमिन करके फिर आइम्मा को तलाश करेंगे कि मिल्लत मुस्लिमा को रसूलुल्लाह के बाद किसको इमाम मानना चाहिए, कौन इमाम है रसूलुल्लाह के बाद। क़यामत तक आने वाले आइम्मा की फहरिस्त बयान करूंगा और दोनों मकतबे फिक्र के अपने अपने अकीदे के मुताबिक एक हदीस एक आयत के झैल में दोनों का मौक़िफ़ पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा तकरीर में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह, जितने सुनने वाले हैं, जितने ये प्रोग्राम देखने वाले हैं, परवरदिगारा उन सब को दिली मुरादों को पूरा फरमा और आपस में हम सब को इत्तेहाद और इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, जितने भी मोमिनीन प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी जो भी हाजात शरिया है उनको पूरा फरमा। हम सबको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद को समझने और हदीस रसूल को समझने और दीन इस्लाम की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा।